السلام علیکم۔ سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں۔ آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین اللہم آمین۔ ہم جو ہے آج کل جو پڑھ رہے ہیں وہ مضارع پڑھ رہے ہیں۔ مضارع جو ہے حال اور مستقبل کو کور کرتا ہے۔ اس سے پہلے ماضی ہم نے پڑھا تھا، اور سب سے پہلے جو فعل کی جو خصوصیات آسان ان معنوں میں ہے کہ فعل کے 99% جو ہے 3 حرف کے فعل کے وہ ہوتی ہے۔ فعل کا جو جڑ ہوتی ہے، روٹس جو ہوتا ہے، وہ 3 حرف کا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک سانچہ بنتا ہے، عربی زبان آسان ہونے کی وجہ یہ ایک سانچہ بنایا جاتا ہے۔ اس سانچے پہ 3 حرف اس فعل کے بھی ہیں، فے اینڈ لام۔ اس لیے ہم اس فعل کو فعل کی جگہ پہ دوسرا لفظ اسی طرح رکھ دیتے ہیں، اور اس کی جو ترکیب ہوتی ہے اس پہ چسپا ہو جاتی ہے، اور میننگ پھر اسی طرح کے بیان کی جاتے ہیں۔ تو ہر پہلا لفظ جو ہوتا ہے فعل کا، وہ فعل ماضی کا پہلے ہی بتا دوں کہ فعل ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ ہر پہلا لفظ ہوتا ہے وہ مذکر واحد، جو اس کے اندر پروناؤن جو ہے، ضمیر جو ہے اس کے اندر آلریڈی ہوتی ہے، چھپی بھی ہوتی ہے، یہ کہنا چاہیے۔ تو ہم نے اب تک جو پڑھا ہے وہ پڑھا تھا فعالہ، فاعلہ اور فعولہ، 3 وزن تھے کہ عربی زبان میں بہت سے لفظ ایسے ملیں گے جن کے عین پر زبر ہوگی، اور عین پہ زیر ہوگا، اور عین پہ پیش ہوگا، لیکن سب سے زیادہ حروف جو ہے عین پہ زبر جس کے ہے اس پہ ہوتا ہے، اس سے کم جو ہے عین جس پہ زیر ہے اس پہ ہوتا ہے، اور جس پہ پیش ہوتا ہے اس پہ بہت ہی کم ہے، یعنی کہ ڈبل فیگر میں بھی نہیں آتے اس کے الفاظ۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چونکہ آسان ہے، اس کی ساؤنڈ جو ہے اگر مشکل ہو، چونکہ اس کی عین کی ساؤنڈ تھوڑا سا پیش ڈل جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لفظ بھی کم ہیں۔ اور جہاں لفظ جو ہے آپ کو ادائیگی اس کی مشکل ہو، اس کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے، اس لیے یہ جو لفظ آسانی سے نکل جائے اس کو نا شامل کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں فعل مضارع۔ فعل مضارع ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں، لیکن بارش کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو ہم مزید نہیں پڑھا سکے تھے۔ تو اصل میں اب جو ہے فعالہ ہے، فعالہ کے 3 وزن آتے ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ تینوں وزن اس میں موجود ہیں، جو عین کلمے پہ زبر بھی ہے، عین کلمے پہ زیر بھی ہے، عین کلمے پہ پیش بھی ہے۔ تو یعنی اس میں جو ہے ہم نے فتح یفتح، یعنی اس کے وزن پہ رکھیں فتح کو، یا فتح، تو یفتح، یہ دیکھیے وزن جو ہے وہی ہوگا، یفعلو کا وزن، فتح کو فتح کو یہاں رکھیں تو یفتح ہو جائے گا۔ اسی طرح ضربہ ہے، ضربہ جو ہے اس میں جو ہوگا یضربو ہو جائے گا، یفعلو یضربو۔ اس میں ہم صرف یہ کریں، اس تین حرف جو ہے فے اینڈ لام، اس کو ہم ذات واد رے بے لکھ کے یضربو ہو گیا۔ اسی طرح نصرہ کا تھا، نصرہ کا
यफ़उलू के वजन पे बनता है। तो नसरा यंसुरु, यफ़उलू यंसुरु, यफ़उलू यंसुरु। तो इसी तरह फाइला के भी दो मजीद वजारे बनते थे, यानी एक तो यफ़अलू और एक यफ़एलू। तो इससे जो है फाइला और यफ़अलू, और एक बात आपको और नोट कर लें कि फाइला में ये आपको यफ़अलू के लफ्ज़ ज़्यादा मिलेंगे, इसके लफ्ज़ आपको बहुत कम मिलेंगे यफ़एलू का। इसमें फाइला 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 में ये सामिया का वजन ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन हसबे का बहुत कम मिलेगा। तो इससे फाइला से जो यफ़अलू बनता है उसमें असल में सामिया, फाइला सामिया, ये देखना फाइला सामिया, फाइला सामिया, ये वजन है, ये साँचा एक तरह। तो इसका जो बनेगा यफ़अलू बनेगा। तो इसमें यस माऊ यफ़अलू, देखें वजन वही है। तीन हरफ जो ब्लैक कर कर रखे हैं, इसमें सीन मीन आइन लग दिया हमने, बाकी हर चीज़ वैसी है। तो यफ़अलू यस्मऊ, इसके माने वो सुनता है या सुनेगा। यानी मुज़ारे के दो माने होते हैं, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो यफ़अलू यस्मऊ। अच्छा, फिर ये था कि एक हासेबा था, तो यफ़एलू यहसबू, यफ़अलू और इसके हासेबा आप यहाँ पे तीन लिख दिए, तो यहसबू हो गया। इनको हम इनके अपने नाम से रखते हैं। जैसे इसका पहला लफ्ज क्या है, फे, तो फे, इसको हम कहते हैं बाब, बाब कहते हैं। ये डिक्शनरी में जब देखेंगे तो कोई भी लफ्ज लिखा होगा उस पे आगे अगर फे लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि जो फतह है उसी के वजन पे इसका मुस्तकबिल और मुज़ारा बनेगा। फिर जिस लफ्ज के आगे ज़वाद लिखा है तो वो भी यज़रबू फैमिली का होगा, ज़राबा फैमिली का होगा, ज़राबा यज़रबू। तो जितने लफ्ज जो ज़राबा फैमिली होंगे उनका सबका जो मज़ारा बनेगा यज़रबू बनेगा। इसी तरह नसारा का यंसुरू। तो जितने भी लफ्ज उस बाप के होंगे, बाप माने एक दरवाज़ा होता है, उस दरवाजे में जितनी फैमिली है रहती है अंदर, उनके सबके एक ही वो होता है, तो यंसुरू, ठीक है। और इसी तरह यसमऊ का सामिया यसमऊ, इसके बाप के तमाम जो लफ्ज होंगे, अल्फाज आएंगे, उसको हम क्या करेंगे कि यसमऊ के वजन पे बनाएंगे। हासेबा यहसबू, इसको हम इस वजन पे बनाएंगे। तो ये हमने उसके बनाए थे, इसके बाद हमने इसकी गर्दान की थी। आज हम इसका मजहूल बनाएंगे, यानी एक्टिव वाइज हमने पढ़ लिया था इस अंदाज में, और आज पैसिव वाइज पढ़ाएंगे। पैसिव वाइज का अलग वजन है। पैसिव वाइज का जैसे आपने इसमें वजन देखा कि यफ्तहू, इसका जो पैसिव वाइज का वजन है वो है युफ़अलू। वही तीन लफ्ज, इसको मैं इसको ग्रीन से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी हो कि वो तीन लफ्ज हैं। ये तमाम जैसे उसका हुआ था कि माजी का ये था कि एक्टिव वाइज जो था फतह, ज़राबा, नसरा, सामिया, हासेबा, किसी की उस पर शेर था, एन कलमे पे किसी पे ज़बर था, लेकिन उसका पैसिव वाइज जो है उसका एक ही वजन था, वो था फ़ाएलू, फ़ाएलू, फ़ाइला। ये जैसे वजन है यहाँ पर, कहाँ है, फ़ोइला, यहाँ लिख देता हूँ मैं।
ہو ہے لا، تمام لفظ جو ہیں جب ہم اس کے بنائیں گے، جیسے حسیبہ ہے تو ہوسیبہ ہو گیا ماضی، کہ اسے گمان کیا جائے گا. سامعہ اس نے سنا، لیکن جب ہم کہیں گے سمعہ تو وہ سنا گیا. اسی طرح نصرہ اس کی مدد کی گئی، اس کی مدد کی. تو نوسیرا جب ہوگا تو اس کی مدد کی گئی. ضربا اس نے مارا. زوریبا ہوگا تو وہ مارا گیا. فتح اس نے کھولا. تو فتحہ جب ہوگا تو وہ کھولا گیا. تو یہ طریقہ کار اس میں تھا. اسی طرح کا یہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کا جو پہلا حرف یا تان جو ہے اس پہ پیش ڈلے گی، اگلا حرف جو ہے فے ہوگا اس کو نہ سکون ڈلے گا، اور عین کلمہ جو ہے یہ عین کلمہ عین کلمہ جو ہے اس پہ زبر ہوگا اور اس پہ پیش ہوگا. تو اس وزن پہ تمام جو ہے، چاہے وہ اس کا ہو، یفتہو کا ہو، ینصرو کا ہو، یضربو کا ہو، یسمعو کا ہو، یسمعو کا ہو، یحسبو کا، سب کا جو مجہول ہوگا، مضارع مجہول، وہ یفعلو کے وزن پہ بنے گا. تو ہم نے اس کو بنا لیا، یہاں پہ ہم نے لکھ دیا اس کو. اس کے سارے جو پہلے لکھے تھے ہم نے وہ کر دیا. اب اس کے معنی کیسے ہوگا؟ یفتہو مذکر واحد، اس میں اس کے اندر چھپا ہوا وہی، تو وہ کھولا گیا. یفتہو وہ کھولا گیا. اور آنے کی ساؤنڈ ہمیشہ رہتی ہے دو کے لیے. اس لیے ہمیں کوئی پچھلی اگر ہمیں یاد ہوگا تو ہم نے کہا تھا یفتہو یفتحانے. تو اب جو ہے یفتہو اور یفتحانے مانے وہ دو کھولے گئے. یفتہونا وہ سب کھولے گئے. تفتہو کوئی مونس چیز ہے تو وہ کھولی گئی. تفتحانے وہ دو مونس چیزیں کھولی گئی. یفتحنا، یفتحنا یہ پریکٹس کی گئی تھی یفتحنا کی، کہ وہ سب کھولے گئے. تفتہو تو کھولا گیا. تفتحانے تم دو کھولے گئے. تفتہونا تم سب کھولے گئے. تفتحینا تو مونس کھولی گئی. تفتحانے تم دو مونس کھولے گی. تفتحنا تو تم سب میں. افتہو میں کھولا گیا، یعنی وہ نفتہو ہم کھولے گئے. تو اس طرح کا وہ ہوگا. جیسے ینصرو، ینصرو کے پہلے اگر زبر ہوتا ینصرو کہتے تو اس کا مطلب کہ اس نے مدد کی اور اس کی ہاں اس کی مدد کی جاتی ہے، یا اس کی مدد نہیں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا، دو معنی ہوتے ہیں. ینصرو کے معنی یہ ہوتے تھے وہ مدد کرتا ہے، مدد کرے گا. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایکٹیو وائز ہوتی ہے اس میں فاعل جو ہے ظاہر ہوتا ہے. ایکٹیو وائز میں آپ نے انگلش میں دیکھا ہوگا کہ اس میں فاعل جو ہے ظاہر ہوتا ہے. جب ہم کہہ رہے تھے ینصرو جس زبر کے ساتھ ینس اس پہ پیش تھا، ینصرو تو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. لیکن ینصرو ینصرو اس میں یہ تشدید ہے. ایک اور منٹ. ٹھیک ہے، تو ینصرو اس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، اس میں فاعل نہیں پتہ چل رہا. ینصرو اس کی مدد کی. ینصرانے ان دو کی مدد کی گئی. ینصرونا ان سب کی مدد کی گئی. تنصرو اس مونس کی مدد کی گئی. تنصرانے ان دو مونس کی مدد کی گئی. تنصرنا، ینصرنا، ینصرنا کے مطلب وہ سب کی مدد کی. ویری گڈ. تنصرو تیری مدد کی گئی. تنصرانے تم دو کی مدد کی گئی. تنصرنا تنصرونا تم سب کی مدد کی. تنصرینا تو مونس کی مدد کی گئی. تنصرانے تم دو کر گئے. تنصرنا تم سب عورتوں کو گئے. انصرنا میری مدد کی گئی. ننصرنا ہماری مدد کی گئی. اسی طرح یضربو ہم نے یضربو پڑھا تھا، لیکن اس کا وزن کیا ہے کہ یفعلو، عین پہ زبر ہے تو یفعلو. یضربو یفعلو
यज़रबू, तो यज़रबू का मतलब क्या है कि उसको मारा गया, ठीक है। यज़रबा ने उन दो को मारा गया, यज़रबूना उन सब को मारा गया, तज़रबू उस मोहनस को मारा गया, तज़रबा ने उन दो मोहनस को मारा गया, यज़रबा ने उन सब मोहनस को मारा गया, तज़रबू तुझे मारा गया, तज़रबा ने तुम दो को मारा गया, तज़रबूना उन सब को मारा गया, तज़रबीना मोहनस को मारा गया। इसमें एक चीज देखें, आप देखें सबकी साउंड सेम है, सिर्फ ये है कि वो जो दो लफ्ज हैं और उनका जो यानी कि जो यतान है, यतान अलामत मज़ारा, अलामत मज़ारा, ये ते अलिफ नून, यतान कहते हैं इसको। ये शुरू में लगता है, यहाँ ये लिखा है तो इसके माने वो है, ये सब वो लोग, वो दोनों, वो सब, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह ये तमाम के देखें, तजरबना तस्माना, तुजरबना तुस्माना, और जैसे तुनसुरना तुफ्ताहना, तो सब एक तरह के वजन के आपको मिलेंगे, सिर्फ 3 हरफ जो है उसमें वो उनको बिठा दी जाएगी। एक और चीज़ जो है आज हम इसको दोहरा लेते हैं, मैंने कहा था पढ़ाऊंगा मैं, मुस्तकबिल को मखसूस करने के लिए। अभी तो ये हमने कहा कि प्रेजेंट टेंस हाल का और मुस्तकबिल का, वो ये है कि जब हमें ख़ास तौर पे हमें कहना चाहिए कि इसको मुस्तकबिल तर्जुमा नहीं करना है, तो तब हम लाम ज़बर इससे पहले यनसरू जैसे लिखा है, यनसरू था, तो यनसरू माने वो मदद करता है या मदद करेगा, लेकिन हम जब लाम लगाएंगे, लाम ये वाला, ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिख दूं ताकि ये कि पता चले कि ये इजाफा किया हमने। जब ये लगाएंगे तो इसका तर्जुमा मुस्तकबिल में नहीं होगा। ला यंसरू वो मदद करता है, वो मदद करता है, या करेगा नहीं कहेंगे, वो मदद करता है, क्योंकि लाम ज़बर ये निशानी है कि इसका तर्जुमा मुस्तकबिल में नहीं होगा। इसी तरह हम चाहते हैं कि इसका तर्जुमा मुस्तकबिल में हो, तो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल आपने कुरान में देखा होगा, एक सीन होता है, सीन, और एक सोफा होता है। सीन और सोफा, ठीक है, इसको हम जब पढ़ेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। जब मुस्तकबिल के लिए मखसूस करना हो कि इसको हम प्रेजेंट टेंस में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसका तर्जुमा जो है मुस्तकबिल में होगा, तो सीन या सोफा लगा दिया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है, पहले मैं इसको तोड़ तोड़ के आपको बताता हूँ। जाला माने, जाला माने उसने बनाया, ठीक है, तो यज आलू वो बनाता है या बनाएगा, यज आलू वो बनाता है, लेकिन अब हमने लिख दिया सा लगा दिया इसके साथ, तो वो इसका तर्जुमा बनाता है नहीं करेंगे, हम कहेंगे वो बनाएगा, सा यज आलू, तो वो बनाएगा। अब जो जाहिर हो जाता है तो हम अल्लाह जो है ये पेश में है, यानी अल्लाह, अल्लाह क्या है, फाइल हुआ, ज़बर होता है तो मफूल होता है, तो ये पेश है, तो अल्लाह बनाएगा बादा युसरा, मुश्किल के बाद युसरा आसानी। फिर से देख लें इसको, सा यज आलू, अल्लाह बनाए, सा यज आलू लाहू, तो अगर इतना होता तो वो बनाएगा होता, लेकिन अब जाहिर हो गया अल्लाह, अल्लाह बनाएगा हम कहना चाहते हैं, तो हम इसके बाद अल्लाह को रफा में लाएंगे अल्लाहू, ठीक है, तो अल्लाह बनाएगा बादा, बाद माने बाद हम इस्तेमाल जो करते हैं, किसके बाद, उसरा, मुश्किल के बाद आसानी, ठीक है। ये लफ्ज़ भी बिल्कुल लफ्ज़ ब लफ्ज़ का तर्जुमा करने की कोशिश है। अब देखिए यहाँ देखिए, कल्ला सोफा तालमून, ये हम 30वें पारे में ही पढ़ते रहते हैं, कल्ला सोफा तालमून, याद करेंगे तो आ जाएगा।
किस सूरे में? कल्ला के माने हरगिज नहीं होता। सोफा माने इसका जो तर्जुमा होगा सोफा का मतलब कि हम इसका तर्जुमा अनकरीब तालमूना, तुम जान लोगे। कल्ला सोफा तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे। ठीक है, तो इसका तर्जुमा जानते हैं नहीं होगा, बल्कि इसका मुस्तकबिल में होगा सोफा, तुम अनकरीब जान लोगे, हरगिज नहीं, तुम अनकरीब जान लोगे। कल्ला सोफा तलून सुम्मा कल्ला सोफा तालमून, कल्ला लो तालमून इल्म यकीन लतरुन्नल जहीम सुम्मा लतरुन्ना ऐनल यकीन, उसमें से। ठीक है, आगे दिन में याद आया होगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे है वलसौफा योती का रब्बु का फतरदा, तो यकीनन और यकीनन अल्लाह अता करेगा, योती का रब्बु का तुझे अता करेगा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ ये लगा हुआ है योती का, इसे इसका मतलब ये मफूल है। ठीक है, तो यहाँ पे जबर होना चाहिए था असूलन, लेकिन हम जेर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह से इसकी अदायगी जो है आसानी हो जा सकती है, इसलिए ये जबर की जगह जेर लगा है। यो ती का उसे तुझे अता किया जाएगा, कौन करेगा? रब्बू का तेरा रब, फतरजा तो तू राजी हो जाएगा। योती का रब फतरजा, ठीक है। यफलू का जो यफलू यफलू यफलू, इसका सबका जो मजहूल पैसिव वाइज जो होगा वो युफ आलू इस वजन पे होगा, जो हमने पीछे वो किया है, इसको थोड़ा दोबारा लिखा है। तो जैसे कतबा है, कतबा किस फैमिली का है? कतबा नून फैमिली का है। मैं कहूँ कतबा और इसका ताल्लुक है नून फैमिली से, तो आप इसका जब भी बनाएंगे तो बनाएंगे क्या? नून फैमिली से, ये इस फैमिली से। ठीक है, यहां हमने बनाया ये इस फैमिली से, तो कहेंगे यक्तुबू, यक्तुबू वो लिखता है या लिखेगा, लेकिन हम कहेंगे इसका वो बनाओ, क्या कहते हैं, पैसिव वाइज, तो हम युक्तबू कहेंगे, यहां पे किया हुआ है। यक्तबू इसके माने वो लिखता है, और यक्तबू इसका माने ये लिखा गया। देख रहे हैं, इस वजन पे जब होगा तो ये यफ उलू, क्योंकि नून की उस पे हो रहे हैं, नून लिखा हुआ है, बाब नसारा, तो नसारा बाब नसरा से, नून से क्या पता चलता है कि बाब नसरा से। तो अब बाब नसरा का क्या है? यंसुरू एक्टिवाइज, यंसुरू एक्टिवाइज, वो लिखता है या लिखेगा, तो यक्तबू, यंसुरू यक्तबू। ठीक है, यंसुरू यक्तबू इस वजन पे आएगा। लेकिन इसका जो पैसिव वाइज बनाएंगे तो वो पैसिव वाइज का अलग वजन है, यक्तबू पैसिव, तो यक्तबू वो ये लिखा गया। ठीक है, दोनों का मैंने वो भी किया है, इनका सांचा भी बनाया है जो आप लफ्ज डाल के बना सकते हैं। बहरहाल मैं एक और जल्दी जल्दी कर देता हूं आपको। अलैहे युरजऊ, वो उसकी तरफ युरजऊ लौटाए जाएंगे। ये पेज देख रहे हैं, यरजऊ किसका है? इस वजन पे, इस वजन पे यरजऊ, यहाँ ये यही है, यहाँ इसका रे आया, यहाँ इसका जीम आया, और यहाँ ऐन आया, यरजऊ। ठीक है, तो लौटाया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, अमर माने अफेयर्स, अमाल या काम, उसके काम, उसके
कुल्लहू उसके तमाम के तमाम उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। ये देखिए दो चीज आई है यहाँ पर, ला तज़लमूना, बाप जराबा से है। तज़लिमूना, तज़लिमूना माने वो लोग जुल्म करते हैं या करेंगे। तज़लिमून है वो जुल्म करते हैं या करेंगे। लेकिन जैसे माजी में हम क्या करते थे कि नफ़ी करना हो तो माँ लगाते थे। मज़ारे में छोटी छोटी बातें ही है ना, चलते चलते हम जैसे बता देते हैं। तो जैसे माजी में लगता था कि मैं कहता कि माँ ज़राबा, माँ ज़राबा, उसने नहीं मारा। माँ ज़राबा, उसने नहीं मारा। माँ ज़रबतू, मैंने नहीं मारा। माँ ज़रबता, तूने नहीं मारा। ठीक है, माँ ज़रबा, उसने नहीं मारा। ठीक है, तो ये जो है माँ लगाते हैं माजी के साथ, लेकिन ला लगाते हैं मज़ारे के साथ। तो हमने कहा तज़लमुना वो जुल्म नहीं करते या जुल्म नहीं करेंगे। ला तज़लमुना यानी तुम अगर जुल्म नहीं करोगे, वला तज़लमुना ये पैसिवाइज है कि फिर तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये पैसिवाइज, ये एक्टिवाइज और ये पैसिवाइज। क्या है यार, पेन भी बिल्कुल खत्म हो गया। ये एक्टिवाइज है, ये पैसिवाइज। अच्छा, यहां खलका माने उसने पैदा किया, खुलिका वो पैदा किया गया। खुलिका इंसाना, इंसान को पैदा किया गया। अब यहां पर हम एक चीज और वो कर दें कि क्योंकि इसमें वो नहीं होता, ये इसको हम इंसानों करेंगे इसलिए ये फेल की जगह लिया हुआ है, तो इसको नाइबल फाइल कहते हैं हम। नाइबल फाइल जो है वो उसका जबर हटा के हम उस पेश लगा देते हैं, क्योंकि वो फेल की जगह आया होता है। ठीक है, और दूसरा जो मफूल होगा उसको हम वैसे ही जबर के हिसाब से लिखेंगे। वह खोले कल इंसानू ज़ईफ़ा, और इंसान को कैसा बनाया गया है, कमज़ोर बनाया गया। वाइजा युन वाइजा फाइजा नोफिका, नोफिका जब सूर फूका जाएगा, समझ रहे हैं? किस पे? हाँ हाँ, फायदा। असल में पेन भी सब वो हो गए हैं असल में। नीचे भी ये होगा फायदा, फायदा नोफिका। तो फिर या देन या फिर या पस जब नोफिका सूर फूका जाएगा। नोफिका माने सूर फूका जाएगा। हाँ, नोफिका माने फूका जाए ना। फायदा ये इज़ा की वजह से, ये इज़ा की वजह से इसका तर्जुमा मुस्तकबिल में होगा, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, इस जब होगा इसके साथ जब है ना दो होता है, एक इज़ा होता है, एक इज़ होता है। इज़ जब होता है इस्तेमाल होता है तो उसके साथ मज़ारे का लगता है, और उसका तर्जुमा जो है कि इसमें माजी में होता है। और जब इज़ा के साथ ये होता है, इज़ा के साथ माजी लिखा जाता है, लेकिन इसका तर्जुमा मुस्तकबिल में किया जाता है। ठीक है, तो फाइजा नोफिका, तो जब सूर फूका जाएगा, फिर सूरे सूर में। ठीक है, नफखातुन एक फूक, वाहिदतन एक फूक
फूकी जाएगी जब, तो ये होगा। ठीक है। काबला का माने कबूल किया। अब मैं इसका वैसे ही कर देता हूं ताकि ये कि वाह माने क्या होता और, ला माने नहीं, यकबलू पैसिव वाइज है, नहीं कबूल किया जाएगा, वला यकबुलू नहीं कबूल किया जाएगा। ठीक है। कबाला के माने क्या, कबूल किया माजी में, और नहीं कबूल किया जाएगा, वला यकबुलू और नहीं कबूल किया जाएगा, मिन्हा उनसे, शफाअतु कोई सिफारिश जो है कबूल नहीं की जाएगी, वला युखजू और नहीं लिया जाएगा। युखजू जो है ना अखादा से, अखादा माने लेना। ठीक है। अखादा माने लेना, लिया, अखादा लिया। युखजू वो याखुजू होता, अगर होता तो लेता है या लेते, लेकिन ये पेश है इस पे और ये पैसिवाइज है। युखजू और नहीं दिया जाएगा, मिन्हा उनसे, अदलुन, अदलुन अदल माने ये होता है कि आप कोई चीज देते हैं, जितना वजन इसका होता है उसकी उतनी वजन हुआ, बदला, बदल। तो इसके माने जो पसे पर्दा अदल माने इंसाफ होता है, यानी आपने 10 रुपये दिया तो 10 रुपये की चीज मैं आपको दे दूं, 10 रुपये का सोना दे दूं आपको, तो वो अदल होता है। तो अदल माने बदला, तो मिन्हा बदला, वला हम यंसुरून और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी, ये भी मदद की जाएगी, ये वो उसी पैसिव वाइज में, और उनकी ना ही मदद की जाएगी। आज की क्लास जो है वो हमने पूरी कर दी है।